ਮਾੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ। Meet Karanveer, a spirited 12-year-old whose bond with his family's land runs deep. मम्मा हाँ जी ट्यूशन तो छुट्टी है अज। हाँ As he returns home from school, his mother's warm welcome sets the tone for the day. Today, without his usual tuition, Karanveer seizes the opportunity to visit the wheat fields owned by his father in Sultanpur village. These fields, located just 5 kilometers away, hold more than just crops. They are a symbol of tradition and heritage for Karanveer and his family. Today, we accompany him on his journey to the fields, gaining insights into the rich tapestry of rural life and the timeless connection between a boy and his land. बड़े हो गए जी, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो। कौन फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। तो बैटिंग करनी अच्छी लगती है क्रिकेट में कि बॉलिंग करनी? बैटिंग और रनर बनना चाहा, वैसे तो मैं बॉलिंग सेट है पर इंटरेस्ट बैटिंग से है। खेतों में कब कब आते हो? आंदे रहा जी, ला लो महीने का मैं गेड़ा तो बजे रहा, और नहीं ज्यादा सीजन चलता हुआ कोई सीजन में तो रोज आंदे रहा। In the heart of Mandoli village stands Karanveer's home, a construction project spanning 3 years. Amidst its unfinished walls, Karanveer resides with his family. However, recent days have seen him and his mother facing the challenges of daily life without his father by their side. The absence of his father prompts questions, leading us to investigate further. Our quest unveils a pressing issue that plagues farmers in the region, a problem that Karanveer is intimately familiar with. As we listen to Karanveer's account, we gain insight into the struggles faced by his father and other farmers, shedding light on the complexities of farming. देखो जी, जिमीदार पते डीलर जेड़े आड़ती हैं 8 रुपये ਨੂੰ आलू देके 8 रुपये ਨੂੰ आलू प्याज ने चीज़ें लेके 100 रुपये ਨੂੰ बेच रहे हैं। क्या मतलब है? फिक्स रेट होवे, MSP को ला रहे हैं हमारे अनाज बा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र जी कई क्या गल नहीं करनी। ये छोड़ दे। कितना जाम ला रखा किड्डे मोर्चे लाए हुए का नहीं पंजाब की धरती पर नाका भी पंजाब की धरती ते ला रखा। This is Gurpreet Singh, a farmer gazing pensively at the sealed border separating Punjab from Haryana. Beyond being Karanveer's father,
Gurpreet embodies the resilience of countless farmers in the region. For the past 3 days, he, alongside thousands of fellow farmers, has been staging a protest at the Haryana-Punjab border in Ambala, the Shambhu border. Their aim to journey to Delhi and voice their grievances in front of the parliament. However, the authorities stand firm, refusing to grant passage. This standoff underscores the deep-seated frustrations within the farming community, grappling with the issues of livelihood, policy and representation. जब बॉर्डर खुलेगा हम सभी दिल्ली जाएंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी जब तक हम वापस नहीं आएंगे। साल लगे, 2 साल लगे, 1 महीना लगे, 3 महीने लगे, मन बना के आए हुए हैं। पूरा राशन पानी बीच ट्रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੁਰਤ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। For over 3 days, farmers have camped at the Shambhu border, bringing with them trolleys and tractors stocked with essentials for daily living. Determined to stand their ground, they have turned the flyover into a makeshift residence, vowing not to retreat until their demands are met. ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸੌਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਦੀ ਭੱਜ ਲੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਭੱਜ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖੱਟੜ ਨੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੱਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਗ ਦੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲ ਜਾਣਦੇ But what fuels their resolve? This protest is more than a display of determination. It's a tense standoff between farmers and authorities. As tension escalates, clashes erupt, revealing the deep-seated frustration and defiance among the farming community. मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दूसरा दिन है ये किसान आंदोलन का और पीछे जो फोर्सेज आपको नजर आ रही हैं वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि मीडिया कर्मी पीछे हो जाए। अब जो यहाँ का सिचुएशन है वो बड़ा ही दिलचस्प है और थोड़ा चिंताजनक भी है। चिंताजनक क्यों है? क्योंकि इस वक्त ये जो शंभू बॉर्डर का फ्लाईओवर है ये एक तरीके से मिनी बैटलफील्ड की तरह लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 2 पार्टीज डिवाइड हो गई हैं। सामने पुलिस फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस के जवान है और इस तरफ कैमरे के पीछे आपको किसान नजर आएंगे। भारी मात्रा में किसान नजर आएंगे। कल शायद जितने थे उससे ज़्यादा किसान नजर आएंगे। अब किसानों की आज तैयारी क्या है? अब ये तैयारी आप देखिए, आपको इस सड़क पर कुछ बोरियां पड़ी हुई नजर आएंगी। कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बोरियां हैं और 3-3 बोरियां सिमेट्रिकल तरीके से रखी गई हैं। ये गीली बोरियां हैं, पानी में भिगा दिया गया है इन बोरियों को। अब इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जब टीयर गैस के गोले उस तरफ से छोड़े जाएंगे किसानों को यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए, तो उन टीयर गैस के गोलों को इन गीली बोरियों से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये सीधी सी सटीक सी स्ट्रेटजी है। ये बोरी आप क्यों लेकर खड़े हैं? पहले मेरे को इसका आप बताइए कि ये बोरी जब वो अथरू गैस फेंकते हैं ना तो ये इसको पानी लगा हुआ है तो इसको ऐसे दबा देते हैं, उसकी गैस खत्म हो जाती है। एक आदमी जो दबाता है उसको थोड़ी बहुत चढ़ती है तो दूसरे को सबको किसी को नहीं चढ़ती, गैस खत्म हो जाती। ये नमक है तो नमक हम पानी में डाल देते हैं तो जो पानी पी लेते हैं तो हमारे जो ये गला है वो साफ हो जाता है। वो बीपी डाउन करता है, ये बीपी हाई करता है उनका केमिकल। तो आप लोग मतलब तैयार है पूरे तरीके से? पूरे हम तो शहीद होने के लिए आए हैं। हमने देखो हम 1 नंबर के शहरी हैं। ये जो भारत है ये भूखा मरता था, ये भूखा मरता था नेहरू के अपने लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो तब हमने गेहूँ
और धान पैदा करेगा। इनने हमें बिजली दी, मोटरें दी, पानी, हमने पानी अपने धरती का ख़त्म करके इनका पेट भरा। अब इनका पेट भर के फूल गया, अब ये हमें आगे आँखें दिखाती हैं। ये पाकिस्तान हमारे बॉर्डर है, ऐसे बना दिया इन्होंने। हम अभी उधर हमारे गेहूँ मांगे तो अभी 7,000 रुपये क्विंटल है पाकिस्तान में, 13,000 अफगानिस्तान में, 5,000 ईरान में, खाड़ी में देशों में मांग रहे हैं हमारे से। लेकिन ये उधर का बॉर्डर खोलता नहीं, इधर का बंद कर देता। हमें ये इनने देश के 2 नंबर के शहरी बना रहा, लेकिन हम बनेंगे नहीं। इस बॉर्डर से अब पुलिस कह रही है, हरियाणा पुलिस की किसी भी हाल में जाने ही नहीं देंगे किसानों को, चाहे वो देखना, ये तुम आर पार की लड़ाई है, देखना हम कैसे जाते हैं। सिर्फ ये है एक टूटने वाला, ये टूट गया, बाकी हम चले जाएंगे। तो हम तो पैदल चल जाएंगे, दरिया पार के कल हम दरिया पार करके चले गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहीं रुक कर प्रोटेस्ट करेंगे, आप जाएंगे और शहीद होंगे। अपनी बच्चों की नस्ल और फसल दोनों बचाएंगे। अडानी बानी को खाद नहीं देने देंगे जमीनी। पानी दे दो मेरे, पानी पीने वास्ते पानी दे दो, दूसरा पंजाब रे। के जरिए आप देखें निष्क्रिय करते हुए क्या हुआ था कल, आपको कैसी लगाई है? कल वहाँ खड़ी थी जनता ही, वो जो हरियाणा से गोला दागते हैं वो पंजाब में दागते हैं। ये हरियाणा की पुलिस है जो, वो पंजाब में गोला दागती है। बॉर्डर के उस पार थे इस तरफ। हाँ, जबकि उनका कोई हक नहीं है। वो यहाँ गोला, पंजाब के लोग तो खड़े ही हैं बॉर्डर के पास, उनमें सैकड़ों लोग खड़े हैं, वो किसी ना किसी के लग जाता है। तो वही गोला लगा आपको कल आके। तो अभी क्या बताया डॉक्टर ने कि ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर कहते हैं कल सर्जरी वाला आएगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। कल आएंगे डॉक्टर साहब सर्जरी के लिए। कल होगा वो देखेंगे। हाँ, तो पट्टी करिए, पट्टी कर देखते हैं, कल खोल कर देखेंगे दोबारा कि क्या बनता है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसे कुछ शेल्स एक्सपायर है, क्योंकि मैं शेल्स भी उठा के देखे हैं, कुछ की एक्सपायरी डेट है, कुछ आपने देखी जो जी जो मैं चेक किया है, कुछ एक्सपायर्ड है, कुछ ठीक है, लेकिन ये हार्मफुल बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, यूथ है, यंगस्टर है, उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और बाकी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ओल्ड एज में पर्सन पहले ही ब्लड प्रेशर, अस्थमा और ये शुगर से जूझ रहे होते हैं। अभी तो ये इनहेल कर रहे, जोश में आ गए हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ या फिर 2-3 मंथ ये हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हुए नजर आएंगे। मैक्सिमम लोग अस्थमा की मेडिसिन लेते हुए नजर आएंगे, लंग्स श्रिंक कर जाएगी, इतनी हार्मफुल है। कहते हैं ना कि हाँ जी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है कहते हैं, लेकिन जो ये शेल्स का वो है, तो आप ये सोचो कि आप एक ही दिन में 1000 ऑफ सिगरेट्स इनहेल कर रहे हैं, इतना हार्म है आपकी लंग्स को दे रही है। In the year 2020, India experienced a historic protest at the Singhu border, spanning over a year, as farmers rallied against the introduction of the 3 controversial farm laws by the government. The protest situated at the Delhi-Haryana border garnered national and international attention. And after enduring 13 months of relentless demonstration, the government conceded to one of the farmers' demands by agreeing to repeal the 3 contentious farm laws. However, the battle was not over. Alongside their call for the repeal of the laws, farmers emphasized the urgent need to legalize the MSP for agricultural produce. MSP, the minimum support price, is a guaranteed amount to be paid to farmers when the government purchases their crops. However, despite annual recommendations by the CACP for 22 essential crops, the lack of legal enforcement leaves farmers vulnerable. Without a robust legal framework, farmers often find themselves unable to sell their produce at the MSP, leading to significant financial losses.
This gap between recommendations and implementation underscores the urgent need for a systematic reform. When the laws were withdrawn, the farmers were still insisting that there is something that we need to do to ensure that the farmer income goes up, which means there was a need for a legal mechanism being assigned to the minimum support price mechanism that we have in India. The concept or the idea behind it was that minimum support price is announced in India for about 23 crops, but effectively it is put in place only for wheat and paddy, and to some extent to cotton and pulses and so on. And what the farmers are demanding is that there needs to be a legal mechanism where all the crops for which the prices are announced, which means 23 crops, it becomes a legal right for the farmer, and nothing in this country then would be purchased below that benchmark price. So the farmers have got back to Delhi and hoping to reach Delhi, and they are insisting that there has to be a final call on making MSP a legal mechanism. India's economy heavily relies on agriculture, with over 2/3 of its population engaged in the sector. Contributing nearly 19% of the GDP, agriculture is vital, yet many farmers struggle. Over 90% of the farmers don't benefit from the minimum support price, leading to significant losses. Shockingly, most state governments fail to procure crops at the MSP rates recommended by CACP, except for wheat and rice. Responding to farmers' demand for legalizing the MSP in 2021, the government pledged dialogue. Yet, after 2 years, farmers remain unsatisfied. This frustration culminated in the announcement of Farmers' Protest 2.0 and a call to march on Delhi. ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 3500 4000 ਦੇ लगभग होना चाहिए। किसान को कर्जा लेता है किसान फसल के लिए, कभी गड्ढे पै गए, कभी पानी आ गया, कभी कुछ आ गया, फसल हुई नहीं, तो हम समय सिर किस्त नहीं दे सकते, तो बैंक वाले आके हमारी बेइज्जती करते हैं घर में। तो कितना चिर जिल्लत की ज़िंदगी जिएगा किसान, हार के उसे खुदकुशी ही ठीक लगती है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਈ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰਾਮ ਜਾਤ ਹੈ ਜੱਟ ਕੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸਕੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਰਾਮ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। हाँ भी किसान के करना पैदा हो जाए मेरा बच्चा जाके दिल्ली वो आंदोलन चल रहा है ना बॉर्डर पे, वो उसके लिए आए हैं। तो एक गुरप्रीत के घर आए थे इधर, तो आप स्वेटर बना रहे हो, आपकी वीडियो बनाए। आगे वीडियो भी आ रही है, बेअंत भी आ रही है ना, बेअंत तो अंदर बढ़ गई। और इधर को ले तक देख। Amidst agricultural turmoil, it's not just farmers who bear the brunt but their families too. Women, pivotal in upholding family welfare and essentials, share their voices in the struggle for change and stability. दिक्कतां जी किसानां नूं, खेती करा तां भी घाटा, नहीं करेंगे तां भी घाटा। सरकार कड़ा पूरे रेट दे रही है जी। पैसा बेशक जो है आदमी कमा के लाता है, लेकिन उसको कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसके लिए कितना बचाना है, किसकी पढ़ाई में खर्च करना है, ये सब चीजें औरतें देखती हैं। इन्ना तो होंदा ही नहीं जी, भी हमने इन्ना सोचना लगेगा पैसे वाले भी कित्थे एडजस्टमेंट करें, इन्ना तो पैसा होंदा ही नहीं किसाना वा। इतना पैसा ही नहीं आ पाता कि उसका हिसाब लगा सकें हम लोग।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਰਹਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਚੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ पूरे दामा पर नहीं जाती। हाँ 15 दिन फिर दिक्कत में आके कोई घर में बच्चा बीमार हो गया, कोई माता बीमार होगी, साडे वर्गी साडे बेटे कहते भी ऐसे ही बेच दो इनू ते घाटा ही हुंदा, वाधा तो सानू किसी चीज में नहीं होया। जब मोदी सरकार आई थी 2019 में, सरकार ने वादा किया था कि अगले चुनाव तक या 2022 तक जो किसानों की आय है वो दुगनी कर देंगे। हाँ कर देंगे। तो कोई वो कुछ बिल्कुल भी नहीं, इन्ना भी फर्क नहीं पाया उन्हें मोदी ने। वो तो आप छड़ा है, उन्होंने क्या परिवार दा पता है। हाँ उन्होंने क्या परिवार दा, ये तो परिवार वाले नूं पता है। हुण गैस नहीं, गैस मुक्या वा की दिक्कत करी, बच्चे उत्थे बैठे ने, गैस नहीं है चाह करने वास्ते, फिर किनू कहिए। बच्चा कहता मैं उत्थे ते आउंदा नहीं, भी चाहे मैं मर जा मां मैं आउंदा नहीं, मैं नहीं आउंदा। साडे मुंडे ने तां ही कहा मैं नहीं आउंदा, मैं तां जित्ते भी तक जाएंगे असीं अपनी लड़ाई करेंगे, थोड़ी लोड़ पई थानू भी आउणा लगू। उत्थे 5000 तो फीस भर रहे मीर जी, 1500 रुपये बस का लगते हैं, 1300 रुपये ट्यूशन का दे रही है, ट्यूशन लाया। In the heart of rural communities, women face dual challenges. Struggling with household management amidst financial constraints, they now stand united at the forefront. Beyond the fields, they march to the border, joining hands in protest, amplifying their voices for justice. These women of farmer families aren't just caretakers, they are warriors, fighting for their loved ones' rights. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਢੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਹਿੰਦੀ वाले जानी ना। अगर हम लोग अपनी मतलब रसोई के बीच में बैठकर खाना बना सकती है ना, तो अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ भी सकती हैं। जी मैं इसी सवाल पे आ रहा था मनदेव, आप महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं भी आपके साथ आई हुई हैं, ठंड का मौसम भी, और जिस तरह से पुलिस ने कल थोड़ा वायलेंट रूप लिया, क्या मतलब आप लोग आपने जो बुजुर्ग महिलाएं कहे ना, ये सारे भाई हैं ना जो, ये इन बुजुर्गों ने ही पैदा किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि नारी शक्ति को कम मत समझो, ये योद्धे हैं ना जो, ये नारी शक्ति ने पैदा करी है, और नारी शक्ति इसीलिए साथ में आई है। बहुत हौसले वाली है मेरी माताएं, ये तो बहुत है पीछे, अभी तो आगे आगे आए हो, पीछे जाके देखना हजारों की तादाद में है महिलाएं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके। As the 2024 Lok Sabha elections loom, the echoes of unfulfilled promises resonate across the nation. 5 years have passed since the Prime Minister pledged to double farmers' income by the year 2022. A vow made in the favor of 2019 electoral battle. Yet the reality remains starkly unchanged. Amidst the clamor of political campaigns, the Annadatas of our nation, the farmers, find themselves standing resolutely on the roads, demanding what they deserve. मेरे सੱਟ भी लगी हुई, मेरे इंजरी हुई पई है, स्पाइन को इंजरी, ते बड़े बड़े बैट सोल भी है मेरे, दर्द भी मैं इतने आ रहा है। हमारी थैली लगी है जी, हाँ पक्की थैली लगी है, हम क्यों यहाँ तक सुन है, डेड है शरीर आपका इसके नीचे। हाँ हाथ हमारे काम करते हैं, हाथ से चल रहे हैं, हमारे तीनों के पैप लगी है, वाशरूम जाने का कोई दिक्कत नहीं, हमारे को पक्की परमानेंट पैप लगी हुई है। इस तो ज़्यादा चोट क्या लगूगी सानू, इस तो ज़्यादा चोट क्या लगनी है साढ़े, इस तो बाद तो मौत ही है, वो एक दिन सब नूं आउणी है, सानू अकेले नहीं आउणी। जदों अपना कोई हक खोऊगा जी, जदों आपका कोई हक खोएगा आप छोड़ दोगे। तो आपका जब बच्चा बड़ा होगा, जैसे आपने बताया, तो अब आप बता रहे हो कि खेती में नुकसान होता है, रेट उस हिसाब से मिलता नहीं है, तो आप चाहोगे कि आपका बच्चा खेती करे, या फिर आप चाहोगे कि पढ़ लिख के कोई नौकरी दूसरी तरह की कर ले? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਜਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੂ ਰਹੇ हैं। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮਾਰ नहीं सकते हैगे। करणवीर, जो अभी जैसे आंदोलन में अभी पापा गए हुए हैं आपके, और वहाँ पे ना टीयर गैस वगैरह चल रही है, अखबार वगैरह में कहीं पड़ा हो तो गोलियां भी चल जा रही है। हाँ जी। तो कभी डर लगता है कि पापा को चोट ना आ जाए, डैडी जी को? फिर क्या चक्कर है, कुर्बानी है, शहीद होंगे जे कोई होएगा।